Hello, my dear students. It's me, Mazbin Siddiqui, and I welcome to you all my online lecture series, Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8, Transport and Communication. In the previous class, we have already started water transport, and we were studying ocean routes. It's the 11th part of Chapter 8, Transport and Communication. Today's topic is ocean routes, the North Atlantic route, the Mediterranean and the Indian Ocean routes, and number 3 is the Suez Canal route. So let's start with North Atlantic route. This is the most important and busiest ocean route of the world. It connects world's two most advanced areas of eastern United States and western Europe. Both coasts have good port and harbor facilities. About 1/4 of world's cargo is transported along this route. Nearly 28 of world's 55 major ports are located on the two ends of this route. Major ports on the North American side are New York, Montreal, Quebec, Halifax, Boston, San John, Philadelphia, Portland, Baltimore, etc. On the European side, this route is served by London, Liverpool, Glasgow, Manchester, Southampton, Rotterdam, Hamburg, Stockholm, and Oslo. Rich agricultural, commercial, and industrial region of Europe export large quantities of manufactured items, textiles, chemicals, machinery, fertilizers, steel, and wine to the United States and Canada. Bulky and large quantities of food grains and raw materials like wheat, wood pulp, copper, as well as iron and steel, transport equipment, etc. are sent to the Western Europe through this route. उत्तरी अटलांटिक का जो मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों को मिलाता है. ये समुद्री रास्ता जो है विश्व के दो सबसे उन्नत क्षेत्रों में के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि विश्व के सबसे उन्नत जो क्षेत्र हैं उन दोनों के बीच में रास्ता बनाता है और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है. और विश्व का सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है, यानी कि ये विश्व का यानी वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशन रूट्स है. विश्व के व्यापारिक जलयानों को 1/4 माल इसी मार्ग से आता और जाता है. मतलब वर्ल्ड का जो 1/4 माल आने और जाने का रास्ता है वो यही है और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट रूट है. विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में से 28 बड़े बंदरगाह इसी मार्ग पर स्थित है. उत्तरी अमेरिका की ओर प्रसिद्ध बंदरगाह न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, बोस्टन, सेंट जॉन, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, बाल्टीमोर आदि हैं. यूरोपीय तट में प्रसिद्ध बंदरगाह लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, रोटरडैम, हैम्बर्ग, लिस्बन, कोपेनहेगन तथा ओस्लो है. ये सारे इन रास्तों के सबसे मेन बंदरगाह हैं जो उत्तर अटलांटिक मार्ग में स्थापित है. साथ ही साथ यूरोप के संपन्न कृषि, वाणिज्य और औद्योगिक प्रदेशों से भारी तथा अधिक मात्रा में निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़े, रसायन, मशीनें, उर्वरक, इस्पात और शराब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात की जाती है इसी मार्ग के द्वारा. उसके साथ साथ खाद्य पदार्थ और कच्चा माल जैसे गेहूं, लकड़ी की लुगदी, तांबा और लोहा, इस्पात, परिवहन के उपकरण आदि इसी मार्ग में पश्चिमी यूरोप में भेजा जाता है. और उत्तरी अटलांटिक प्रदेश का विदेशी व्यापार संसार के से सम्मिलित व्यापार में अधिक है, यानी कि अमेरिका और यूरोप के बीच आयात और निर्यात का काम होता है और उसमें मांस, लकड़ी, लुगदी, तांबा, लोहा, पीतल, इन सारी चीज़ों का आपस में निर्यात एक से दूसरे एरिया में होता है और इन रास्तों को जोड़ने का काम उत्तरी अटलांटिक मार्ग यानी कि नॉर्थ अटलांटिक रूट करता है. सेकेंड पॉइंट इज द मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशन रूट, यानी कि भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग. This route connects the developed countries of Europe in the west
with the developing countries of East Africa, South Asia and Southeast Asia through the Mediterranean Sea, the Red Sea and the Indian Ocean. Almost the entire ocean-bound traffic from Europe to East Africa, Asia and Australia passes through this route. It provides a major trade link between the East and West. The east-bound cargo mainly consists of machinery and industrial products. The westbound cargo includes mineral oil and agricultural products such as cotton, rubber, tea, coffee and sugar. Ports at Aden, Mumbai, Kochi, Colombo and Singapore are some of the important ports of this route. भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग है। ये मार्ग पश्चिम में यूरोप से उन्नत देशों को पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया के विकासशील देशों से भूमध्य सागर, लाल सागर तथा हिंद महासागर द्वारा मिलाता है। यूरोप से पूर्वी अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले जो लगभग सभी जल मार्ग हैं, जलयान है, इसी मार्ग को अपनाते हैं। पूर्व की ओर जाने वाले माल में मुख्य रूप से मशीन तथा औद्योगिक उत्पाद होते हैं। पश्चिम की ओर से कृषि उत्पाद जैसे कपास, रबर, चाय, कहवा, चीनी और खनिज तेल भेजे जाते हैं। इस रास्ते में पोर्ट जो पड़ता है वो है सईद, अदन, मुंबई, कोची, कोलंबो और सिंगापुर आदि, जो इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन है या पोर्ट्स हैं। आवर थर्ड पॉइंट इज स्वेज कैनल और स्वेज कैनल रूट या स्वेज नहर। Suez Canal is one of the greatest achievement of man, the field of transportation and navigation. It connects Mediterranean Sea with Red Sea. The construction work of this canal was started in 1854 by a French engineer, Ferdinand de Lesseps, and was completed in 1869. This canal is 168 km long. Its average depth is 16.15 meters and its maximum width is 365 meters. स्वेज नहर जो है, इसका निर्माण स्वेज जल डमरू मध्य को काटकर किया गया है। इसके निर्माण में का कार्य जो है 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेपिस को सौंपा गया और ये नहर जो है कंप्लीट हुआ 1869 में, यानी 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। इस नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है और औसत गहराई 1615 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है। ये नहर पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से मिलाती है। भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद तथा लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज इसके दो सिरे हैं। ये नहर ग्रेट बीटल झील, लिटिल झील तथा टिम्सा झीलों में से होकर गुजरती है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के साथ साथ एक रेलवे मार्ग भी है और इसे पश्चिमी किनारे पर इस्लामिया नगर है। एडवांटेजेस ऑफ स्वेज कैनल, यानी कि स्वेज नहर के क्या क्या लाभ हैं। नो सिंगल ह्यूमन enterprises during the 19th century has done more to affect the destinies of nation through a physical geographical change than the Suez Canal. The construction of this canal has opened a shorter route between European countries on one hand and the countries of East Africa and Asia on the other hand. This has drastically reduced the distance between various countries before the opening of this canal. Ships used to follow Cape of Good Hope route and moved around Africa. As a result of this canal, their distance as compared to the Cape of Good Hope route has reduced by 9,600 km between London and Mumbai, by 5,120 km between Lisbon and Macau, and by 10,720 km between New York and Aden. स्वेज नहर और इसके यातायात में नौचालन में मानव की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, यानी कि इसका बनने में एक बहुत अच्छी और
सफलता का प्रमाण है मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए। ये नहर के निर्माण से एक ओर यूरोप के देशों से तथा दूसरी ओर अफ्रीका के पूर्वी देशों से दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व के बीच छोटा मार्ग खुल गया। यानी कि पहले जो रास्ते बहुत लंबे हुआ करते थे अब वो छोटे हो गए, जिससे दूरी, समय तथा खर्च आश्चर्यजनक कमी आई। यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे और डिस्टेंस था, टाइम लगता था, उन सब चीज़ों में कमी आ गई। पहले जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर आशा अंतरिक्ष के मार्ग से जाना पड़ता था, लेकिन जब स्वेज कैनल बना तो नहर सीधे सीधे छोटे मार्ग द्वारा चले जाते हैं। उदाहरणतः या एक फॉर एग्जाम्पल, आशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में स्वेज मार्ग से लंदन और मुंबई के बीच की दूरी 9,600 किलोमीटर, लिस्बन और मकाओ के बीच की दूरी 5,120 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 90 जहाज हैं जो पार कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन, आर द मेन beneficiaries from the canal. The Suez route has long been called the jugular vein of British Empire. The other European countries taking advantage of this canal are France, Italy, Netherlands, Sweden, Denmark, and Germany. On the eastern side, the countries of Africa, Asia, as well as Australia and New Zealand are taking advantage of this canal. The main ports towards the west of this canal are London, Liverpool, Hamburg, Manchester, Southampton, Lisbon, Gibraltar, Naples, and Alexandria. On the eastern side of this canal, Aden, Karachi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Colombo, Rangoon, Singapore, Hong Kong, Jakarta, Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide, and Wellington are the main ports. The main cargo from the western countries consist of machinery parts, fertilizers, oil, sheets, edible oils, medicines, and cloth, while from the eastern countries food grains, jute, silk, tea, wool, coconut, petroleum, metals, and ores, rubber, spices, etc. are transported. स्वेज कैनल के निर्माण से या स्वेज नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों में विशेषता खास करके ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसलिए इस नहर को ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी माना जाता है। यानी स्वेज रूट हैज़ लॉन्ग बीन कॉल्ड द जुगुलर वेन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इस नहर से लाभ उठाने वाले अन्य देश जो हैं, मतलब ब्रिटेन के अलावा भी जो देश इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनमें से फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी हैं। इस नहर के पूर्व की ओर लाभ उठाने वाले अफ्रीका और एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड है। साथ ही साथ स्वेज नहर के पश्चिम में लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, लिस्बन, नेपल्स, जिब्राल्टर तथा अलेक्जेंड्रिया प्रमुख बंदरगाह है। पूर्व की ओर स्थित प्रमुख बंदरगाहों के नाम हैं अदन, कराची, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोलंबो, रंगून, सिंगापुर, हांगकांग, जकार्ता, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड एवं विलिंगटन। पश्चिम से पूर्व की ओर निर्मित माल जैसे मशीन, कपड़ा, दवाई तथा रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं। इनके बदले में पूर्वी प्रदेश से पश्चिमी भागों को कच्चा माल जैसे पटसन, गेहूं, रेशम, चाय, हैम्प, नारियल, ऊन, मांस, चीनी, टीन, रबर तथा गर्म मसाले भेजते हैं। तो ये थे एडवांटेज स्वेज कैनल के या स्वेज नहर के। मतलब जब स्वेज नहर बना तो क्या हो गया कि लंबी दूरी जो है वो छोटी हो गई इस नहर के बन जाने से, और इसका बहुत फ़ायदा हुआ बिजनेस के लिए, जिससे क्या हो गया कि आयात और निर्यात का काम बहुत सरल हो गया। छोटी दूरी होने की वजह कर कम समय में, कम खर्च में, कम लागत में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिला, और बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे हर कंट्री से पोर्ट्स जो हैं इसके साथ जुड़े, जिसका पूरा जो वर्ल्ड में व्यापार फैला, ग्लोबलाइजेशन का अच्छा उदाहरण देखने को मिला। तो ये 3 पॉइंट आज हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा उत्तर अटलांटिक मार्ग यानी कि नॉर्थ अटलांटिक रूट,
सेकंड हमने पढ़ा भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग, द मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशन रूट। एंड थर्ड हमने पढ़ा स्वेज कैनल और स्वेज नहर और स्वेज कैनल रूट। आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करती हूँ। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. So students, we will meet in next video lecture. Till then, take care, stay safe, and thank you.